ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، مشائخ محترم، خاص طور پر اس گلشن کی بہاروں کے امین اور اس ہنستے مسکراتے گلستان چمنستان کو اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کرنے والے برادر گرامی حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، ہمارے لیے بلا شبہ یہ خوشی کا، مسرت کا، سعادت کا اور حیرت کا موقع ہے۔ حیرت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نسبت سے، اعمال کی برکت سے اور اپنی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت کے لیے جس پناہ گاہ میں آنا چاہیے، اس پناہ گاہ میں آئے ہوئے خوش نصیب بندوں کے ساتھ ملاقات کا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہ موقع نصیب فرمایا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، مختصر سی بات کرنی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ پڑھی، ان میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام حالات میں آئے، تفصیل کی طرف نہیں جاتا، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آیت کریمہ کا ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ ان کی زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اس وظیفے کے جاری ہونے کا جو نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ ان آیات مبارکہ میں ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، امید کی ساری جو شکلیں ہیں وہ دم توڑ جائیں، توقعات کے سارے آپشن ختم ہو جائیں، ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر طرف سے پریشانی کا عالم ہو، اور اس پریشانی کا آپ حضرات تصور کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں، جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، تو بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ وہاں سے وہ نکل پائیں گے۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس حالت میں بھی جو ان کے جذبات اور احساسات ہیں، اس حالت میں بھی ان کا اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو رجوع کا عالم ہے، وہ رجوع کا عالم میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، ہر آدمی کی مشکل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کسی کی کاروباری مشکل آئے گی، کسی کا صحت کا معاملہ آئے گا، کسی کا حسد کا معاملہ آئے گا، کسی کی کوئی اور پریشانی آئے گی، طرح طرح کے مسائل انسان کے ساتھ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا عالم ہے، اپنا حال ہے، اپنی مچھلی ہے، اپنی مچھلی کا پیٹ ہے، اپنے اندھیرے ہیں، اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں کرنے والا کام وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا، اور وہ کام کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب حضرات میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت
सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये कलिमात पढ़ रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि उन्होंने किस कैफियत में पढ़े होंगे, आप तसव्वुर करें उनके इखलास का क्या आलम होगा, आप तसव्वुर करें उनकी क्या कैफियत होगी। कभी कभी आप हजरात ने जिंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आते हैं कि जिन मौके में आदमी दर्द के साथ पढ़ता है, इखलास के साथ पढ़ता है। खास तौर पर अगर किसी आदमी को किसी समंदरी सफर का मौका मिला हो, समंदरी का ना मिला हो, अगर कोई आदमी हवाई जहाज पे सफर कर रहा हो और जरा सा जहाज हचकोले खाना शुरू करे, जरा सा जहाज ऐसे हालात से दो चार हो जाए कि उसकी लैंडिंग ना हो सकती हो। अभी हमारे अपने बुजुर्गों और अकाबिर की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सफर हुए। एक सफर में हम लोग तुर्की और कतर गए थे और दूसरे सफर में अल्हम्दुलिल्लाह चाइना जाना हुआ। तुर्की के सफर से जिस दिन हम वापस आए तो वो दिन था जिस दिन इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश हो रही थी और उस मुसलसल बारिश में 1.25 घंटा तक हमारा जो जहाज है वो इस्लामाबाद और कुर्बो जवार की फिजाओं में रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये आता था कि 5 मिनट बाद लैंड करेगा, फिर आता था 5 मिनट बाद लैंड करेगा। हमारे साथ जो दूसरे साथी थे वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इस वक्त जहाज फलां जगह पर है, फिर देख रहे हैं कि अब लैंडिंग क्यों नहीं हो रही, फिर ऐलान हो रहे हैं कि जी मौसम की खराबी की वजह से लैंडिंग में ताखीर हो रही है। आप तसव्वुर करें कि जो टाइम जहाज वालों ने दिया हुआ है उससे 1.25 घंटा अगर ताखीर हो जाए तो मुसाफिरों पर क्या गुजरती है। इसलिए कि वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बज़ाहिर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, बज़ाहिर आदमी के लिए सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं और उस वक्त बंदा अपने रब को जिस आलम में पुकारता है उस तरह की पुकार की कैफियत वो आम हालात में बन नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बहुत सारे मकामात पर इस मंजर को बयान फरमाया। 11वें पारे में सूरह यूनुस में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों का तज़किरा किया कि जब वो कश्ती में हों और फिर मौजें आ जाएं, फिर तूफान आ जाए, फिर हालात बन जाएं और वो उस हालम में अपने रब को पुकारते हैं मुखलिसीन लहुद्दीन, ऐसे मुखलिस होकर, ऐसे आजिज होकर, ऐसे बेकरार होकर, ऐसे मुस्तरब होकर, ऐसे मुस्तर होकर अपने रब को पुकारते हैं कि इस आलम में कभी किसी ने अपने रब को नहीं पुकारा होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और मछली के पेट से निकलने की कोई सबील बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जो बात मैं आप हज़रात से कहना चाह रहा हूं वो कुरान करीम की इससे अगली आयात मुबारका हैं। क्या फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम। हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को सुना, हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वजीफा कबूल किया, हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस एतराफ को कबूल किया। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उस मुश्किल से उनको निजात दी। ये निजात देना ये हम सब ने सुना, इस सब पर गौर किया, लेकिन जो इससे अगला हिस्सा है वो मेरे और आपके लिए पैगाम है। और वो पैगाम क्या है, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम ईमान वालों को इसी तरह निजात दिया करते हैं। ये काबिल गौर बात है। उसके लिए यूनुस होना जरूरी नहीं, उसके लिए पैगंबर होना जरूरी नहीं, उसके लिए वही का आना जरूरी नहीं, उसके लिए मछली के पेट में जाना जरूरी नहीं, उसके लिए खास हालात का होना जरूरी नहीं। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं हम ईमान वालों को इसी तरह निजात दिया करते हैं। और ईमान वाले, जो भी ईमान वाला है, जिसने भी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, रब्बे जुल जलाल का वादा है, हजरत यूनुस का वाकया जिक्र करके, वो मुश्किल जिक्र करके, वो हालात जिक्र करके, वो गम जिक्र करके, उस गम से निजात जिक्र करके रब्बे जुल जलाल क्या वादा फरमा रहे हैं, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमारा तरीका ये है, हमारी मेहरबानी ये है, हमारी सुन्नत ये है, हमारा दस्तूर ये है, जो मुश्किल में हमारे दरवाजे पे आ जाए, जो मुश्किल में हमें पुकारने लगे, जो मुश्किल में हमारे कसीदे गाना शुरू कर दे, जो मुश्किल में हमारा नाम लेना शुरू कर दे, जो मुश्किल में अपनी कमियों का एतराफ करना शुरू कर दे और इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन कहना शुरू कर दे, हमारा फिर ये निजाम है, हमारा फिर ये तरीका है। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम ईमान वालों को निजात दिया करते हैं।
अब ये जो आप हजरात माशाल्लाह तशरीफ लाए, और जो मैंने पहले कहा कि मेरे लिए हैरत की बात कि सच्ची बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने भाइयों की नकदरी करता है, पूरी तरह से अंदाजा नहीं होता कि भाई ये मेरे भाई हैं, ये मेरे साथी हैं। पीर इकबाल कुरैशी साहब मेरे आबाई इलाके से भी ताल्लुक रखते हैं, हमारा अशरों से एक बड़ा मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक है। फिर अपने बड़ों के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारे तर्जुमाने अहले हक हैं, कायद मदारिस दीनिया हैं, हजरत की क़ियादत में, और हजरत अक़दस मौलाना पीर अजीज़ रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की रफ़ाकत में, और हमारे हजरत मुफ्ती शम्स रहमान साहब, इनके वालिद साहब, इनके पूरा खानदान, हमारे मोहसिन नजरात हैं, इन सब हजरात की रफ़ाकत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उज़्बेकिस्तान का सफ़र हुआ। और समरकंद और बुखारा, वो सरजमीन जो इल्म की सरजमीन, वो सरजमीन जहां इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी जैसे मुहद्दिसीन वहां आराम फरमा है, उस सरजमीन में हमें इकट्ठे सफर करने का, एक दूसरे से कहने सुनने का, एक दूसरे से इफादा और इस्तिफादा का मौका मिला। और सच्ची बात यह है कि आज यहां आकर जो मंजर देखा, जिस तरह आप लोगों के अंदर तलब देखी, जिस खुलूस के साथ दूर करीब से आने वाले लोगों को देखा, मुख्तलिफ साथियों से मैंने फर्दन फर्दन पूछा, भाई आप कहां से तशरीफ लाए, क्यों तशरीफ लाए, यहाँ कितने दिनों से आपका क़याम है, यहाँ के मामूलात क्या है। जिन जिन साथियों ने अपनी तफसीलात बयान की, दिल बाग बाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस दौर में, फितनों के इस माहौल में, मादियत परस्ती के इस दौर में, जब हर आदमी ये समझता है पैसे होंगे तो मसले हल होंगे, हर आदमी ये समझता है ताल्लुकात होंगे तो मसले हल होंगे, हर आदमी ये समझता है ओहदा होगा तो मसले हल होंगे, हर आदमी ये समझता है फलां कार्ड मिल जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, फलां की कॉल आ जाएगी मसला हल हो जाएगा, फलां का लेटर आ जाएगा मसला हल हो जाएगा, फलां फलां चीजों का इंतजाम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे। हालांकि ये सारे के सारे वो धोखे हैं, जिन धोखों की वजह से, जिन उलझनों की वजह से हम आज अपने रब से भी दूर हैं और अपनी उन मुश्किलों की दलदल में इस अंदाज से धंसते चले जा रहे हैं कि वहां से हमारे लिए निकलने की कोई सबील ही नहीं। मसले कैसे हल होंगे? अल्लाह हल करेंगे। और कैसे करेंगे? आमाल के रास्ते से हल करेंगे। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मशाइख का बताया हुआ तरीका, मशाइख का बताया हुआ वजीफा, ये तरबियत है। दुआए हिज़्बुल बहर ये तरबियत का एक अमल है, लेकिन ये बताना मकसूद है, ये सिखाना मकसूद है, ये पढ़ाना मकसूद है कि जब भी कभी हालात आएंगे, जब भी कभी मुश्किलात आएंगी, जब भी कभी खतरात का सामना करना पड़ेगा, जब भी कभी लोगों की तरफ से हसद का, लोगों की तरफ से तरह तरह के रवैयों का सामना करना पड़ेगा, तो मेरा और आपका तर्ज अमल क्या होगा? हमने अपने रब की तरफ रुजू करना है और हमने मस्जिद में आकर डेरा डालना है। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार और अमल से मुझे और आपको सिखा गए। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो हमारे लिए आइडियल हैं, वो हमारे लिए मॉडल हैं, वो हमारे लिए उस्वा हैं, वो हमारे लिए नमूना हैं। जब भी कभी कोई मुश्किल पेश आती मस्जिद तशरीफ ले जाते, कोई मुश्किल पेश आती वुजू फरमाते, अपने रब की बारगाह में खड़े हो जाते। तूफान आता तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले जाते। आंधियां चलती, हवाएं आती, बारिश बरसती, कोई भी मौका होता, मुझे और आपको अपने प्यारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करते हुए नजर आते हैं, अपने रब की बारगाह में जबीने नियाज झुकाए हुए नजर आते हैं, अपने रब की तरफ रुजू करते हुए नजर आते हैं। ये जो मश्क है, ये जो तरबियत है, ये जो एतकाफ है, ये जो आप हज़रात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत पीर इकबाल कुरैशी साहब को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, ये एक छोटा सा जजीरा सजाया, इस जजीरे को आबाद किया और यहाँ ये माहौल बनाया। इस माहौल में ये बात सिखाई जा रही है, ये बात पढ़ाई जा रही है कि जब भी कभी हालात आएंगे हमने अपने रब के दरवाजे पे आना है। जब रब के दरवाजे पे आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज रब्बे ज़ुल जलाल सारी मुश्किलें आसान फरमा देंगे। ये बात जब ईमान वाले को समझ आ जाएगी फिर सारे मसले आसान हो जाएंगे। आज हमारा अलमिया क्या है कि हम ये समझते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, हम ये समझते हैं कि हालात बहुत खराब हो गए, हम ये समझते हैं कि फला मामला हो गया।
हमारे हजरत जी के अजल खुलफा में से थे हजरत मौलाना पीर कासिम मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाएं। हमारे मदारस हैं, दीनी काम हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़ाहिर है कि मुश्किलात आती हैं, हालात हैं, तंगी है, बच्चों के लिए कभी खाना राशन पूरा करना मुश्किल, कभी बिल अदा करना मुश्किल, कभी तामीरात के मसले में परेशानी। तो मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हजरत महंगाई बहुत ज्यादा है। फरमाया कि महंगाई तो बहुत छोटी चीज है, हम लोगों के जो आमाल हैं उसका तकाजा तो ये था कि जमीन फटती हम उसके बीच में धंस जाते, उसका तकाजा ये था कि हमारी शक्लें मसख हो जाती। ये छोटी मुश्किल है, ये छोटी आजमाइश है, महंगाई छोटी आजमाइश है। तो मैंने अर्ज किया, हजरत ठीक है आजमाइश तो है, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए, लेकिन दीनी काम भी तो मुतासिर हो रहे, मस्जिद मदरसे भी तो मुतासिर हो रहे। तो फरमाया कि आप इस रुख से क्यों सोचते हैं कि महंगाई है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि महंगाई जितनी भी बढ़ जाए अल्लाह के खजानों से तो नहीं बढ़ सकती। आप हजरत के जुमले पर गौर करें, महंगाई जितनी भी बढ़ जाए अल्लाह के खजानों से तो नहीं बढ़ सकती। आप सोचें कि सोचने का कितना अच्छा अंदाज है कि महंगाई जितनी भी बढ़ जाए मेरे रब के खजानों से नहीं बढ़ सकती। हालात कैसे भी हो जाएं, मुश्किलात कैसी भी क्यों ना हो, दुश्मन कैसा भी क्यों ना हो, साजिश करने वाला, हसद करने वाला, मंसूबे बनाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, फितना खड़ा करने वाला, जादू करने वाला, टूने करने वाला, कोई भी किसी किस्म का शर करने वाला जितनी मर्जी मंसूबा बंदी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, मेरे रब की ताकत से तो किसी की ताकत नहीं बढ़ सकती। बस ये यकीन जब दिलों में पैदा होगा फिर बादशाही है, फिर सुकून है, फिर इज्जत है, फिर सरबुलंदी है। और ये जो आप हजरात को यहां पर मश्क करवाई जा रही है, ये मश्क बुनियादी तौर पर अपने रब से ताल्लुक की वो मश्क है कि जब अल्लाह के बंदे को ये मालूम हो जाता है कि मेरा रब है, मेरा रब जब है तो फिर मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, मेरा रब सारे मामलात को संभाल लेगा, मेरा रब सारे मामलात को मैनेज कर लेगा, मेरा रब सारे दुश्मनों के लिए काफी, मेरा रब सारे हसद करने वालों के लिए काफी, और मेरा रब वो कदीर है, मेरा रब अलीम बिज़ात सुदूर है। फिर मेरे रब की बारगाह में जब मैंने कोई मामला पेश कर दिया फिर मुझे किसी और फिक्र और फाके की जरूरत नहीं है। तो आप हजरात खुशकिस्मत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे जुल जलाल ने मौका नसीब फरमाया, यहां तशरीफ लाए, अमाल का एहतमाम किया, खूब अमाल का एहतमाम किया। लेकिन ये ना हो कि यहां तो अमाल किए, बाहर निकले और फिर वहां के रंग में रंगे। बस ये अपना मिजाज बना लें कि जहां भी जाएं आदमी की निगाह अपने रब की तरफ होनी चाहिए। और मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको क्या सिखाया? जो भी मौका है, जब भी हम कोई दुआ करते हैं, आप मसनून दुआओं पर गौर करें तो हर दुआ में क्या सिखाया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। हर मौका पर क्या सिखाया जा रहा है? अपने रब की तरफ रुजू करना है, अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करना है। और हमारे शेख हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि आदमी को दो तरह की हालतें पेश होती हैं। एक हालत यह है कि उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेमत दी, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा। जब उस नेमत का ख्याल आए आदमी सरापा शुक्र बन जाए, आदमी सरापा बंदगी बन जाए, आदमी सरापा इज्जो इनकिसार बन जाए। और जब किसी चीज की जरूरत पेश आए आदमी को ये हालत पेश आती है, या अल्लाह मुझे फलां चीज दे दे, या अल्लाह फलां चीज की कमी है। जब किसी कमी की, किसी जरूरत की सूरत हाल पेश आए अपने अल्लाह से मांगने वाला बन जाए, और जो नेमत अल्लाह करीम ने दी है उस नेमत पर शुक्र अदा करने वाला बन जाए, तो वो हर हाल में अपने रब से जुड़ जाएगा। और जो हर हाल में अपने रब से जुड़ गया अल्लाह अपनी रहमतों से उसको माला माल फरमा देंगे। एक मुख्तसर सा अमल, हमारे हजरत जी के यहाँ जंग इज्तिमा में हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, हजरत मौलाना डॉक्टर इलियास साहब जो फैसल मस्जिद के खतीब हैं और दावा अकेडमी के डीजी हैं, उन्होंने अपने बयान में एक अमल बयान फरमाया। वो अमल बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। फरमाने लगे
کہ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو بہت نواز رکھا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، لاکھوں کی تعداد میں تلامذہ اور شاگرد اور ہر نعمت کی فراوانی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا حضرت یہ جو اتنی بہاریں ہیں، یہ جو اتنی اللہ کی رحمتوں سے آپ کو اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی وجہ نہیں بھائی، وجہ تو نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ میں نہیں، بلا شبہ اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی آپ کا عمل تو ایسا ہوگا، ساری دنیا میں انسان بستے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو فراوانی ہے، کوئی نہ کوئی تو بنیاد ہوگی۔ فرمایا نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر الیاس سارے بزرگوں کے بڑے چہتے اور لاڈلے، فرمانے لگے کہ حضرت یہ والی بات آپ کسی اور سے کہہ سکتے ہیں، میں تو آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل معلوم کر کے رہوں گا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا۔ فرمانے لگے کہ حضرت تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر فرمایا کہ الیاس آپ مجبور کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات کا کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہر وقت ہی شکر کی کیفیت عطا فرما رکھی ہے، اور جب جب موقع ملتا ہے، خاص طور پر ہر دن میں میرا یہ معمول ہے کہ 2 نفل شکرانے کے میں ضرور پڑھتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو اہل علم یہاں تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جیسے پہلی آیت مبارکہ پڑھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یہاں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لام تاکید سکیلا، نون تاکید سکیلا، شکر کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ لام تاکید کے ساتھ، نون تاکید سکیلا کے ساتھ، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، فراوانی فرمائیں گے۔ اس لیے آج ہم سارے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے، اور ہر لمحے جب بھی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، تو بس اپنے رب کی بارگاہ میں دل جھکا رہے، عاجزی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور جب جب موقع ملے اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں۔ کریم اللہ، ہم اس قابل نہیں تھے، ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، آپ نے ہماری طلب کے بغیر، ہماری اوقات کے بغیر، ہماری استعداد کے بغیر، ہماری صلاحیت اور اہلیت کے بغیر آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں نوازا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمانا۔ تو جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات خود دیکھیں گے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ہر طرف انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ رب العزت کا فضل انشاءاللہ العزیز شامل حال ہوگا۔ اللہ کریم اس مسجد کو اور آبادی نصیب فرمائیں، پورے عالم میں ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں، اور یہ جو یہاں اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ دور قریب سے حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی برکت سے، آپ حضرات کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ ہمارے اسلام آباد کے ایک بڑے متحرک اور خوب دینی کام کرنے والے عالم دین حضرت مولانا سعید اللہ اظہری صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی اب یہ شام نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کے لیے پہنچنا ہے، اس لیے مختصر بات کی ہے۔ آپ حضرات سے بھی ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سعید اللہ اظہری صاحب کو جملہ مسافران آخرت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم نے یہاں اس شیبی مسجد میں اکٹھا فرمایا، اللہ اپنی جنت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنی رحمت سے اللہ کریم جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔